the private members' resolution will remain inconclusive. We will take up special mentions now. Sri Satish Chandra Dubey. Not present. Derek O'Brien. I don't see him. Pavitra Margherita. Thank you, sir. I would like to speak in Assamese, and thanks to this August House for having the facility of English Assamese translator and translator. So my subject is appeal to declare Assamese language as a classical Indian language. ইউৰোপীয় ভাষা পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ভাষাসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় সংবিধান স্বীকৃত প্ৰায় 23 মিলিয়ন লোকে ব্যৱহাৰ কৰা অসমীয়া এটা প্ৰাচীন ভাষা। উত্তৰ পূব ভাৰতত বিভিন্ন ৰাজ্যত অসমীয়া ভাষা আজিও সংযোগী ভাষা ৰূপে ব্যৱহাৰ হৈ আছে। Honorable members, প্ৰায় 2000 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰা অসমীয়া ভাষাৰ এক নিৰৱচ্ছিন্ন ইতিহাস আছে। ভাষাৰ লগে লগে Are you getting translation? Are you getting translation? He is speaking in vernacular Assamese. Thank you. ভাষাৰ লগে লগে অসমীয়া সাহিত্যৰ নিদৰ্শন প্ৰায় 8ম 9ম শতিকাৰ চৰ্যাপদৰ পৰাই পোৱা যায়। আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল চতুৰ্দশ শতিকাৰ আদিভাগত সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতৰ ভিতৰতে পোন প্ৰথমে বাল্মীকিৰ ৰামায়ণ অসমীয়া ভাষালৈ অনুদিত হৈছিল মাধৱ কন্দলীৰ দ্বাৰা। ভাষা আৰু সাহিত্যৰ নিৰৱচ্ছিন্ন ইতিহাসৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি অসমীয়া ভাষাও ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানলৈ স্বীকৃত 6টা ভাষাৰ দৰে ধ্ৰুপদী ভাষাৰূপে স্বীকৃতি পাবৰ যোগ্য। কাৰণ এই স্বীকৃতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আটাইকেইটা লক্ষণেই অসমীয়া ভাষাৰ মাজত বিদ্যমান। ইয়াৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে বিদ্যায়তনিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালো। I hope my honorable fellow members have they are getting translation in English and Hindi. Felt the power and beauty and melody of Assamese language. Thank you. Srimati Mamta Mahanta. माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ज़रूरी प्रसंग के ऊपर ओडिया में बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। She is speaking in Oriya. Are you getting translation? You check. Please carry on, honorable member. ओडिशार प्राकृतिक संपद परिपूर्ण तथा आदिवासी अधूषित अंचल भाव मयूरभंज राज्यर सर्वबृहत जिला। 2011 जनगणना अनुसार यही जिले में 25 लाख रु ऊर्ध्व लोक बसवास करती। जिलार शिक्षाहार 85.89% होइथिबा बेले 90.77% पुरुष एवं 80.82% महिला शिक्षित अछंती। यही जिलार आदिवासी संप्रदाय सांताल, कोल्ह, भातुड़ी, भूमिज, हो, भूया, माहाली, मुंडा, गंड, मांकड़िया, खड़िया समेत आदिवासी मान्यतार अपेक्षार थिबा कुड़िमी पुराण, तामुडिया, भंज पुराण और कुंभार संप्रदायर लोक बसवास करती। एमानक सामाजिक अर्थनैतिक विकास पई केंद्र सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। तेबे शिक्षार विकास बिना सामाजिक अर्थनैतिक विकास संभव नुहे। जिले में बसवास करुवा 60% आदिवासी सामूहिक विकास मयूरभंज जिलार रायरंगपुर ठारे एक जातीय आदिवासी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करिबा पई तुरंत पदक्षेप नेबा निहाती आवश्यक। यह द्वारा मयूरभंज समेत केउझर, सुंदरगढ़, देवगढ़ और बालेश्वर जिला समेत पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंग और बिहार आदिवासी छात्र छात्री माने उपकृत हेबे। एही विश्वविद्यालय रे विभिन्न आदिवासी भाषा अध्ययन सहित आदिवासी संस्कृति संपर्क में गवेषणा हो पारिबो। एहा फलरे राज्यर आदिवासी संस्कृति सुरक्षा सहित शिक्षा क्षेत्र में आदिवासी भाषार प्रचार प्रसार हो पारिबो एवं आदिवासी संप्रदायर लोक माने बहुल भाव उपकृत हो पारिबे। एणु मयूरभंज जिले में रायरंगपुर ठारे जातीय आदिवासी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने पाई मु केंद्र सरकार निकट में दृढ़ भाव दाबी उपस्थापन करुछि। धन्यवाद। धन्यवाद। Derek O'Brien, are you ready? Yes, sir.
So my special mention today is the need to strengthen the pre-legislative consultation policy. Sir, the pre-legislative consultation policy excuse me, was adopted in 2014 to ensure public consultation for all legislation. Now, however, sir, the policy has failed its objective. One, there is no official database on bills put up for public consultation. Two, according to independent research, only 74 bills out of 301 bills introduced in Parliament from 2014 to 2021, only 74 have been put up for public consultation. Now, sir, of these 74 bills, 40 bills were not circulated for 30 days, as is the specified policy. 40 of the 74. The 2014 policy stated that the manual for parliamentary procedures and the instructions on writing cabinet notes would be modified to ensure public consultation. Sir, this has not been done. Sir, through you, I want to request the government, through this special mention, there is an immediate need to take steps to strengthen the 2014 policy. The Ministry of Law and Justice must create a public dashboard reflecting the bills that have been sent for public consultation, and they must put up the date of the consultations, the dates, and the links to the draft bills. Each minister, while introducing a bill, please lay a copy of the summary of the public consultations done for 30 days in Parliament. If for some reason the bill has not been circulated for comment, the minister should table the reason for it. It may be ensured that the bills that are circulated for comments adhere to the 30-day time limit that is according to the policy. To make public consultation binding on all ministries, the Manual for Parliamentary Procedures in the Government of India and the instructions issued by the Cabinet Secretariat on writing cabinet notes should be modified to incorporate the procedures for this crucial part of legislation, which is public consultation. Thank you, sir. Thank you. Dr. L. Holomantaya. Thank you, Chairman, sir. Sir, my special mention today is a very important issue on youth of this country, relaxation of an attempt to UPSC aspirants. Sir, the students who wanted to write the examination of UPSC have been denied during COVID pandemic. Many youth who are eligible did not get the chance of writing the examination. On account of it, their future is at stake. Sir, they have requested the Government of India to give relaxation under special condition for those who have completed the age and attempt to write the examination. But the government has taken a decision that it is not possible. Sir, in other cases, the government has taken a decision of relaxing age limit for categories of candidates in the recruitment of Army, Delhi Judicial Services, UGC, and CAA examinations. Many states have also given the age relaxation as one-time measure due to COVID pandemic. This has been done by 17 states in the country, sir. Sir, during the same situation, the relaxation was given by UPSC in 1979, 1990, 1992, 2014 and 2015. The students, in the interest of their future, have gone to the court requesting for the relaxation. Sir, the court in the judgment has said that
this has to be looked into sympathetically. There are many students belonging to scheduled castes, scheduled tribes and marginalized communities who have no ceiling on the attempts, but age restriction is there, or debarring them from writing the examination. Sir, this is another important issue the government has to look into sympathetically. Sir, so I demand the government to consider this issue in the interest of the youths of this country who are eligible and missed the opportunity for no fault of them. Thank you very much, sir. Thank you. Sri Khiru Mahato. सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आप उसके लिए शासन का आभारी हूँ। मैं पहले बार बोलने जा रहा हूँ वायु प्रदूषण पर रोक के संबंध में। महोदय, झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत बसंतपुर कोतरे पचमो केवीपी प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें 3070 एकड़ कोल बेरिंग एरिया एक्ट के तहत सन 1981 में भूमि अर्जित की गई है। यह भूमि कोल इंडिया सीसीएल के लिए की गई है, परंतु 43 वर्ष बीत चुका पर सीसीएल आज तक कार्य नहीं किया। जहां 1140 एकड़ रेती भूमि, बाकी 1931 एकड़ वन विभाग की भूमि है। महोदय, उसके बाद अभी 1057 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि की भी मांग किया गया है, जिसमें 5 गांव के लोग शामिल हैं, जैसे बसंतपुर, पचंडा, हुरदाग, पचमो, रहावन शामिल है, और 1931 एकड़ लिया जाएगा तो वन जीव तो रहने के स्थल समाप्त हो ही जाएगा तथा पर्यावरण संतुलन खत्म हो जाएगा। इसलिए वन को बचाया जाए और वन भूमि है तो इतना अधिक मात्रा में नहीं दिया जाए। झारखंड में बड़ी बड़ी कारखाना एवं विद्युत पावर स्टेशन है, जैसे रामगढ़ जिला में पतरातू विद्युत थर्मल पावर, बोकारो थर्मल पावर, भंडारीदा बोकारो इलेक्ट्रिसिटी, पूर्वी सिंहभूम में जिला में सैकड़ों लौह अयस्क फैक्ट्री अवस्थित है। कोयला खान की भी सैकड़ों कोयला खदान है, संचालित है, और अन्य प्रदेश में भी जैसे कोयला खान वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर, महाराष्ट्र है। कोयला खान के चलते कोयला खनन प्रदेशों में भी बड़ी डंप यार्ड में आग लगी हुई है, जैसे झारखंड के धनबाद जिला एवं रामगढ़, वेस्ट बोकारो, टिस्को, टाटा कंपनी के भी बड़े डंप यार्ड है, उसमें भी आग लगा है। अन्य जगह इस तरह से है जिसमें पूरा वायु प्रदूषण हो रहा है। फैक्ट्री कोयला खान के चलते वन भूमि को भी बचाना मुश्किल हो गया है। बगल जहाँ फैक्ट्रियां हैं चल जाता है। आपको सिर्फ पढ़ना है। चलते भूमि अधिग्रहण, वन भूमि का जमीन जो है उसको अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए। जितना आवश्यक है थोड़ा मोड़ा उतना किया जाए, लेकिन आपने जो लिख के दिया उस पर सीमित रही है। जी। तो इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं इस पर ऐसा रोक लगाई जाए, वन भूमि के अधिग्रहण नहीं किया जाए। धन्यवाद। श्री राकेश सिन्हा जी। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट को चलाने की आवश्यकता के संबंध में है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है और इसकी संस्कृति में प्रयोगधर्मिता एवं विविधता अवर्णनीय है। देश में सूक्ष्म संस्कृतियों के रूप में स्थानीयता का आधारित अनेक परंपराएं, जीवन मूल्य हजारों वर्षों से उपस्थित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कला, नृत्य, चित्रकला सहित बहुतायत स्वरूप में सांस्कृतिक चेतना पाई जाती है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या जनजातियों का क्षेत्र, अनेक प्रकार की सूक्ष्म संस्कृतियों का आधार आध्यात्मिक और पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित अनुभव है। साथ ही देश में ज्ञान का उपार्जन निरंतर होता रहा है। यहाँ तक कि आक्रमण काल और औपनिवेशिक काल में भी ज्ञान उपार्जन
रचनात्मक लेखन का दौर नहीं रुका। जब हम पर्यटन के लिए किसी क्षेत्र में जाते हैं तब वहाँ की सूक्ष्म संस्कृतियों, वहाँ की ज्ञान की परंपराओं की जानकारी मिलती है। एक प्राचीन सभ्यता जिसका इतिहास 10,000 वर्षों का है, उसके धरोहरों, ज्ञान की परंपराओं, सूक्ष्म संस्कृतियों को लेखन में नहीं सिमटा जा पाया है। वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करना, जानकारियों का इंसाइक्लोपीडिया बनाना हमारा दायित्व है। यह कार्य आज़ादी के बाद से उपेक्षित रहा है। नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल दिया गया है। देश में अपने धरोहरों के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। अतः ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट आरंभ करने की आवश्यकता है। इसके तहत श्रुतियों में और अलिखित रूप से उपस्थित जानकारियों को एकत्रित किया जाए। आज यूरोप के अधिकांश देशों के विश्वविद्यालयों में यह प्रोजेक्ट प्रमुखता से चल रहा है। भारतीय संदर्भ में इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। अतः मेरा अनुरोध है, भारत के विश्वविद्यालयों में इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती दर्शना सिंह। उपसभापति महोदय, स्पेशल मेंशन में विषय है चंदौली में कृषि आधारित उद्योग लगाने के संबंध में। महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की निवासी हूँ, जहाँ धान की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है, जिसके कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ कृषि आधारित उद्योग की अनंत संभावनाएं हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है और यह प्रेरणा दी कि किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अनंत संभावना को तलाशा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसल कटाई के बाद फसलों की साज संभाल, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। चावल की भूसी आमतौर पर बर्बाद हो जाती है, जबकि चावल की भूसी का तेल एक खाद्य तेल है जिसे राइस ब्राउन तेल के रूप में जाना जाता है। इसलिए चंदौली में चावल की भूसी के तेल के लिए औद्योगिक इकाइयों की अच्छी संभावना है। इतना ही नहीं, धान के कचरे से इथेनॉल का उत्पादन भी किया जा सकता है, जो जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे किसानों को आर्थिक लाभ के साथ साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की वोकल फॉर लोकल नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि चंदौली जनपद में धान से संबंधित औद्योगिक इकाई लगाने पर विचार किया जाए। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Monday, the 19th December 2022. Thank you.